The summary of today's topic, the digestive system. The food which we eat, it mainly consists of large molecules. These molecules cannot pass through the cell membrane, so cell cannot use them for energy or growth. Therefore, food molecule must be broken down to smaller molecules that can pass through the cell membrane. So, the conversion of large molecule into smaller molecule can be done through 5 stages or phases. These 5 stages or phases are the ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestion. Digestion is the process of taking in food. Digestion is the process of breaking up complex substances into simpler substances, and absorption is the diffusion of digested food into blood. Assimilation, food molecules can be oxidized to get energy or change to make new material for growth. Egestion, the elimination or removal of undigested food from the body is called egestion. Food in the the digestive system of human consists of a long tube that extend from mouth to anus. This tube is called alimentary canal and associative gland. The main sections or the parts of the alimentary canal are oral cavity, esophagus, stomach, small intestine and large intestine. Now we will discuss one by one these parts of alimentary canal. Now, the alimentary canal: oral cavity, esophagus, stomach, small intestine and large intestine. The associative digestive glands are also present. They are salivary gland, liver and pancreas. Now, we will discuss the first part of the alimentary canal, which is called the oral cavity or the buccal cavity, या हम माउथ भी कहते हैं. Now 3 organs are present in the mouth. They are teeth, tongue, salivary gland. The function of the teeth is to grind, to chew the food. The function of the tongue is, या माउथ जो है आपके पास है, या ओरल कैविटी जो है, हमने कहा इट इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल. फंक्शन इसका क्या है? It receives the food. In the oral cavity there are 3 important organs, that is teeth, tongue and salivary gland. Teeth grind or chew the food. The function of the tongue क्या करता है? Because in the tongue the taste buds are present, so the taste buds, it help us to sense the taste of the food. It also help during grinding of the food by keeping it between the teeth, and the tongue also help in swallowing process. Now the next is the salivary gland. ये क्या है? टंग और टीथ जो है, यहाँ पे क्या होता है? ये होता है ड्यू टू मैकेनिकल प्ले द रोल ऑफ मैकेनिकल डाइजेशन. जबकि केमिकल डाइजेशन जो है, हमारे पास क्या चीज़ प्रेजेंट है? salivary 3 pairs of salivary glands are present. They secrete chemical which is known as saliva, and saliva is a mixture of digestive enzyme, mucus and salt. Now the salt, it kills the germs and bacteria and make the food alkaline. म्यूकस क्या काम करता है? मॉइस्ट करता है, जिसकी वजह से फूड सॉफ्ट हो जाता है एंड इट कैन बी ईजीली ब्रोकन डाउन. ठीक है. जबकि डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हैं, कौन सा एंजाइम है? दैट इज़ द salivary amylase, हम उसे कहते हैं. एंड द फंक्शन ऑफ द salivary amylase इज़ टू ब्रेक डाउन द स्टार्च एंड द ग्लाइकोजन इनटू माल्टोज. अब जब ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा तो क्या होगा? इट मीन्स कि आफ्टर मैकेनिकल एंड पार्शियल chemical digestion, the food turns into a form of a ball-like structure which is called bolus. अब bolus जो है, food in the form of a bolus is pushed back by the action of a tongue. Now the downward movement of the food from the buccal cavity is called swallowing. The beginning of the swallowing is voluntary,
but once the food reaches the back of the oral cavity, swallowing becomes automatic. Clear? इसके बाद हमारे पास आ जाता है द नेक्स्ट इज़ द ऑसोफेगस, या जिसको हम कहते हैं फूड पाइप. ये क्या है? इट इज़ अ मस्कुलर ट्यूब है. ठीक है, इट इज़ अ मस्कुलर ट्यूब एंड इट्स फंक्शन इज़ टू जॉइन द ओरल कैविटी टू स्टमक. ठीक है, ये जैसे आपको नज़र आ रहा है, दैट इज़ द ऑसोफेगस. ये क्या कर रहा है? जॉइन कर रहा है किस चीज़ को? स्टमक को और ओरल कैविटी को जॉइन कर रहा है आपस में. क्लियर? अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्टमक. दैट इज़ अ स्टमक. स्टमक इट इज़ अ मस्कुलर इलास्टिक एंड पेयर शेप बैग which is 12 inches long and 6 inches wide. Its stomach capacity is 1 liter and the food stay over here for 3 to 4 hours. Clear? In stomach, the food is further broken apart through the process of churning. The wall of the stomach, ये जो wall है stomach की, ये क्या होती है? Contract and relax होती है, and this movement help in the thorough mixing of gastric juices and food. The churning action also produces heat which help to melt the lipid content of the food. ये जो wall of the intestine है, they produce a gastric juices. गैस्ट्रिक ग्लैंड्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या सिक्रीट करते हैं? गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रीट करते हैं. और ये जो गैस्ट्रिक जूसेस है इसमें क्या क्या प्रेजेंट है? इसमें प्रेजेंट है HCl है, म्यूकस है और पेप्सिन इज़ प्रेजेंट. ठीक है, पेप्सिन जो है, HCl जो है, ये क्या है? ये एसिडिक है, एसिड है, जैसे नाम से ज़ाहिर है हाइड्रोक्लोरिक एसिड. सो दैट पेप्सिन एंजाइम इट वर्क इन एसिडिक मीडियम. ये एसिडिक मीडियम में काम करता है. सो द HCl मेक द गैस्ट्रिक जूसेस acidic, so it properly digests the protein. HCl क्या करता है? नेक्स्ट फंक्शन इज इट आल्सो किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच इज़ प्रेजेंट इन द फूड. म्यूकस जो प्रेजेंट है ये क्या करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लाइनिंग, जो स्टमक की जो लाइनिंग है उसको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द HCl, चूँकि वो एसिड है. अब यहाँ पे पेप्सिन जो है ये पार्शियली डाइजेस्ट करता है किस चीज़ को? प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है. जब ये पार्शियली डाइजेस्ट हो जाता है, अब यहाँ पे स्टमक में, अब यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट की पार्शियली डाइजेशन एक तरह से हो गई है, फूड यहाँ पे आ गया है. अब यहाँ पे थिक सूप लाइक स्ट्रक्चर इस फॉर्म, इसको हम क्या कहेंगे? दैट इज़ नोन एज काइम. यहाँ पे जो आपके पास बॉल लाइक स्ट्रक्चर बना था उसको हमने क्या कहा था? दैट इज़ नोन एज बोलिस. बट हेयर अ थिक सूप लाइक स्ट्रक्चर इस फॉर्म विच इज़ नोन एज द काइम. अब ये जो काइम है ये कहाँ आएगा? इट कम्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है? दैट इज़ अ नैरो 6.5 मीटर नैरो ट्यूब है विच इज़ प्रेजेंट इन कॉइल्ड फॉर्म. कॉइल्ड फॉर्म में ये प्रेजेंट है. हेयर द 2 ऑर्गन्स आर प्रेजेंट. 2 ऑर्गन यहाँ पे प्रेजेंट है. वन इज़ नोन एज द लिवर एंड द सेकंड इज़ नोन एज द पेनक्रियास. द लिवर दे सिक्रीट बाइल. ठीक है, ये बाइल सिक्रीट करता है जो कहाँ आता है? हेयर द गाल ब्लेडर इज़ प्रेजेंट. ये गाल ब्लेडर में आता है और यहाँ पे ये स्टोर हो जाता है. फिर इस डक के थ्रू, इस बाइल डक के थ्रू ये सिक्रीशन कहाँ आती है? ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है जिसे हम कहते हैं ड्यूडेनम, ये यहाँ पे ये सिक्रीशन आती है. इसी तरह जो पेनक्रियास है ये क्या करता है? ये 3 टाइप ऑफ पेनक्रियाटिक जूसेस या सिक्रीट करता है. इसमें जिसको हम कौन कौन सी वो 3 है? दैट इज़ द पेनक्रियाटिक एमाइलेज जो कि हेल्प करता है इन द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. इसी तरह ट्रिप्सिन जो है ये सिक्रीट करता है जो कि हेल्प करता है इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन. और इसी तरह लाइपेज प्रोड्यूस करता है, सिक्रीट करता है जो कि क्या करता है? हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स. ठीक है, तो ये दोनों मिल के जब इस एक डक में आती है तो तब हम इसको क्या कहते हैं? दैट इज़ नोन एज द हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट. इट इज़ नोन एज द हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट. Now in the small intestine the process of digestion is completed. जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो कहाँ कंप्लीट हो जाता है? वो कंप्लीट हो जाता है इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन. इट मीन्स कि द कार्बोहाइड्रेट्स दे आर कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, द प्रोटीन्स दे आर कन्वर्टेड इनटू एमाइलेज and the fats they are converted into fatty acid and glycerol. Now the digestion is completed and body convert the large
insoluble material into small water soluble molecule. Now why this process occur? Why? Because the final product, that is glucose, amino acid and fatty acids, ये क्या करेंगे, ये ब्लड के थ्रू बॉडी के डिफरेंट सेल्स तक ले जाए जा सके, जहाँ ये सेल में स्टोर होते हैं, एनर्जी, ग्रोथ और बॉडी रिपेयर के काम आते हैं. अब जो ब्लड है, ब्लड में ये प्रोडक्ट थर्ड स्टेप में मिक्स होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज़ नोन एज एब्जॉर्प्शन. हमने वहाँ पे किया था कि थर्ड स्टेप पहले क्या था, इंजेशन, सेकेंड इज डाइजेशन एंड द थर्ड इज़ नोन एज एब्जॉर्प्शन. अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसकी सरफेस पे मिलियंस ऑफ टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, दे आर नोन एज विलाई. विलाई आर ब्लड वेसल जो हैं, ये कनेक्टेड होते हैं विद दिस विलाई, और द फंक्शन ऑफ द विलाई इज टू एब्जॉर्ब द फूड एंड ट्रांसफर टू ब्लड वेसल्स. क्लियर? थैंक यू.